what is the requirement for having an act enacted or a bill produced in terms of seed as a product? The two things which make important for seed related activities which need to be monitored, regulated, or important for keeping the product value certain or between batches same quality level accepted is the field production part, where you produce a seed, and the processing of it after you produce the seed. These are the two factors where there can be errors of multiple kinds which need to be regulated. Errors or manipulations, or people can abuse the facility available. These are the things. Sorry. The identity of the variety and the purity of the material, the viability and the vigor of the material as it is growing, all those kinds of things are very crucial to see that when you ascertain that this is a seed of a certain quality, whatever be the quality, there are multiple qualities of seed. Like the commercial seed which is sold by the farmer, sold to the farmer through a notified agency is known as certified seed. That is produced from a seed source called foundation seed, and the foundation seed is sourced from breeder seed. The foundation seed and breeder seed are with the seed company or seed agency or the notified production system, and the nucleus seed is with the person who breeds the material or the institution who breeds. In the Seed Act, there is no mention about the nucleus seed, the old Seed Act of 1966, there is no mention of regulating the nucleus seed, because the producer of the variety, producer of the technology is the person who is controlling it totally. So, therefore, there is no stipulation to its possible errors in terms of any of this, okay, because he or the institution is responsible for it, otherwise it cannot even be notified. So, therefore, there is no regulation, since that cannot be abused, because there is nothing else can be done to the nucleus seed, it is only got to be used for producing breeder seed, which is going to be evaluated. So, in order to do that, there is a discussion on breeder seed, foundation seed and certified seed, not on nucleus seed. So, nucleus seed, but is the source for everything else, that is the purest of the seed, nucleus seed. So, all these simple points which can always be misused or abused in order to see that there is something wrong or something, everything is perfectly okay. So, Seed Act somehow gives you some handle to turn to minimize anything that is happening in these particular parameters, whether in the field or after the field work. So, that is how this Seed Act came into existence, that is Seed Act 1966, which was converted into rules in 1968, and the Seed Control Order established in 1983, in order to see that at times government will decide or take control, that is some variety has to be produced, some seed has to be produced, some seed has to be produced under this level of value, or some seed has to be produced at this level of value, some seed has to be produced and given to certain agency, in order to overcome any kind of possible calamities of the kind which require a particular variety to be produced, or which require a particular crop to be produced in order to maintain the food security part of the country under Essential Commodities Act. So, that was incorporated as a control order, and protection of plant varieties, that is to protect the breeder's right as well as the farmer's right together, in order to see that if somebody uses the variety for commercialization, the original breeder, whether the farmer or the breeder from the institution, gets some benefit out of it. That is the whole purpose of this protection, is a soft protection like an IPR, nothing different, but for plants, which because the patent law does not allow a live material, especially the plant system, to be protected. So, this is a subversion of that possibility by using the same understanding and same basic philosophy of giving the inventor the value of the product. Okay. So, that is where the protection of plant varieties came up. In India, the only country which has also identified the farmer also as a producer of a variety or a breeder of a variety, because the farmer can also innovate, farmer can also pick up one off type or a different kind of plant in a population, and then multiply that and see that it is doing all those good points which the variety is supposed to do, and better than the variety in which he picked it up. So, he becomes a breeder that way. So, that is also facilitated. Now, let us see the Seed Act 1966. It has all these articles, some 25 of them, where you have to look at all those possibilities. Whosoever is a seed producer here will have already interacted with the seed inspector, sometimes notorious, sometimes very effective,
but more often than not they can use this as a good arm to see that the quality of seed is maintained by all the seed producers. So, these are all like any other act of say parliament, where you have to see from first part of the say commodity to the last consumer's part of the commodity, all of them covered. So, involving all these particular things, where they also look at the property where the seed is produced and the quantity of the produce, and the offences by the companies in not following the regulations. What do you do if there is an offence like that, and what are the things the seed inspector can do or should not be doing? All those things are stipulated in this. That is not nearly necessary to go through, but some parts I have picked up which is necessary for you to understand as industry. Okay, these are very simple things. The objective is of the Seed Act is to an act to provide for regulating the quality of certain seeds for sale and for matters connected therewith. Certain seeds is something important, because the old Seed Act includes agriculture with horticulture. It does not take the other propagules, okay. Whereas the new Seed Act which is coming up, I hope it will come up, it has not been passed in 2004. So, I believe it will happen now in the new government. Let us see if it happens. In that is also covered. I will briefly tell those things also. Now, the Government of India has the power to notify any material, that is also enacted from that power 1968, wherein it can decide to call any material, pick it up, look at the standards, what it can set by itself, and notify it on a gazette. What India has done is use what is known as All India Coordinated Crop Improvement Programs in different crops as the basis for enabling the government to pick up and understand varieties identity, varieties performance, and its stability, in order to decide that the variety can be notified. Otherwise, by act it can say pick up any material, any kind of variety to be sold for purpose of agriculture, it can notify. It is not necessary that it should be passed by All India coordinated programs, etc. It is not necessary, but the same government through the Seed Act provisions has enabled, as a part of this notification itself, that for notification put minimum condition that the material should be tried under 2 years of multi-location systems under the production system that is going to be notified in the gazette. Like this variety is good for early sowing under irrigated conditions for northwestern plain zone having height of so many say feet above sea level. If that is a condition, there should be database to say that under these conditions this variety is doing very well. How do we come to a conclusion that it is working? So, I have some trial system. So, All India coordinated trial conducted by ICAR is the basis for such things. So, they have adopted this part to see that this is meeting the purposes of agriculture of a given area or given location. So, when you notify that condition. This variety is released and notified for the purpose of cultivation in states A, B, C under the condition of say upland cultivation or lowland cultivation, or with no irrigation or minimum irrigation like 2 irrigations, or rain fed condition, timely sown, late sown, early sown, anything, okay, things of this kind. And if I propose a variety which is to be planted after maize, specific to that, notification will be like that. This variety in Rabi will follow maize. That is, it is notified only for that purpose, which means any farmer who does not grow this under that condition and then says this is not performing is not liable to be compensated. Whereas, if he follows the same condition and this is not performing, then he can be compensated. Things of this kind. Then the regulation of notified seed. Say any person can or cannot use this act for his purposes, but whenever he wants to sell it or keep it for selling purposes or stock it or procure it as a notified variety, provided it follows all this, the seed which is holding is identifiable by its name. So, somebody should be able to identify that what he holds is this variety, for which there are labeling systems. The certifying agency gives a label, so that label farmers also know. If it is yellow color label, blue color label, pink color label, he will know, okay, this is a certified seed, this is foundation seed, this is breeder seed, he will know. So, those kinds of things. Then such seed conforms to the minimum limits of germination. So, that is also printed on the
packet, that it has to have this level of germination, it has to have this viability and stored on so and so case. Then a container of such seed bears prescribed manner, mark or label containing correct particulars thereof, specified under that section 6 is about the value of how do you produce a seed and what is the level of its performance, etc. Then it complies with any requirement as may be described. That is what the requirement, that it is good for submergence, that is when the field is flooded, this variety will work good, or when the field is dry as prescribed. So, those things, that means anything can be after notification sold, anybody can have a power, it is not required to be registered. Okay, like we are licensing to the registered seed companies, but to a seller of notified variety is not required to be registered as of now in the 1966 Act, but in the 2004 Act is a requirement. सर अभी ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन का जो जोनल मीटिंग होता है, तो उसमें ये जो लेबलिंग का प्रॉब्लम था कि उसमें आप मेंशन करेंगे कि दिस वैरायटी इज यानी प्रोड्यूस समथिंग 45 to 50 क्विंटल, तो वो आप यानी उसको किसान को ये दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं आप, तो उस पे कई स्टेट ने अपोजिशन किया था कि ये पॉसिबल नहीं है, हाँ, लेकिन नहीं ऐसा है ना, दैट इज़ ट्रू, लेकिन वो PPFRA में है, वो कॉम्पनसेटरी PPFRA में है, जो प्रोटेक्शन करने के बाद जो डिक्लेयर करता है कि इसकी वैरायटी की परफॉर्मेंस ये है, और जो उसको यूज़ करता है एज अ प्रोटेक्टेड वैरायटी गिविंग लाइसेंस फी, उसको कॉम्पनसेशन नहीं, वो कंडीशन देते हैं ना, उस कंडीशन के साथ बताते हैं प्रोवाइडेड दिस, ये कंडीशन है उसमें, ये इतनी बारिश हुई है या इतना इरिगेशन दिया हुआ है, ये सॉइल का कंडीशन है, फर्टिलिटी कंडीशन ये है, एवरेज कंडीशन ये है, अगर ये है तो इसमें इतना प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। ये इशू आया था तो जो सीड कॉर्पोरेशन और NSC वगैरह जो है उन्होंने अपोज किया उनको, नहीं कोई भी नहीं करेगा इसको, वापस तो करेंगे नहीं है, तो गारंटी देना किसान को कि इतने यील्ड देगा आपके एरिया में, बिल्कुल। ये तो वैसे इसमें दिक्कत ये है कि हमारे जैसे सिस्टम में जहाँ मैकेनाइज नहीं है और कोई प्रूफ नहीं है, तो इसमें कहना आसान है, देने के लिए भी सरकार तैयार हो जाएगी, लेकिन किसान को ये प्रूव करना करीब करीब नामुमकिन है कि उसने वो सब फॉलो किया है। क्लेम करने वाले के ऊपर है वो, कि उसको प्रूव करना है कि उसने जो ट्रीटमेंट करना था किया, जो सीड ट्रीटमेंट करना था वो किया, जो पोस्ट सोइंग जो वीडिसाइड यूज़ करना था वो किया, जितने मात्रा में करना था वही किया, ये सब प्रूव करना करीब करीब नामुमकिन है। मैं NSC में था, मैंने तो उसमें आप यानी जो किसान ये जो हम बोलते हैं आपका पंपलेट रहता है, मिनी किट में पंपलेट डालते हैं, तो 45 to 50 क्विंटल है, तो इस तरह के कई कंज्यूमर कोर्ट में केस हैं, वो कोई नहीं चलता आया हुआ है कि आप यानी समथिंग 50,000 1 लाख रुपए पेनल्टी देंगे क्योंकि आपके अनुसार इतना यील्ड होना चाहिए था, लेकिन वो यील्ड उतना हुआ नहीं है, तो उस तरह में यानी किसान के फेवर में वो केस गया है। नहीं, केस तब गया जब लॉयर नहीं है, NSC का कोई गया, कंपलसरी नहीं है कंज्यूमर कोर्ट में, वही बात है ना, अगर उसको पेश करने वाला, प्रॉब्लम NSC में यही है, उनको एक आदमी होगा जिसने कभी किसी में किसी फूलों में किसी चीज़ में उसने अपनी MSc करी होगी, कुछ किया होगा, वही सब कुछ देखेगा, वही किसानों के साथ जुड़ के अपना सीड मल्टीप्लाई करेगा, उसको आइडिया ही नहीं है कि जो आप प्रूफ देते हैं, पासपोर्ट डाटा जो देते हैं, आपका जो पासपोर्ट डाटा रहता है वैरायटी का, उसमें क्लियर मेंशन रहता है 45 to 50 क्विंटल, वो जो वहाँ पे जज बैठा उसको वो समझ में नहीं आती कुछ चीज, उसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं समझता। हाँ वही ना, नहीं जज का बैकग्राउंड नहीं समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, जज को बैकग्राउंड जानने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जो NSC की तरफ से या किसी सीड एजेंसी से जो जाएगा ना, उसको ही आना चाहिए पहले, उसको ये डिफेंड करने की जरूरत है कि 45 to 50 क्विंटल तब आएगा जब इरिगेशन इतना दिया होगा, और फर्स्ट इरिगेशन तब दिया होगा। उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दिया उनको, नहीं वो तो ठीक है, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री दोस थिंग्स आर यूज्ड फॉर इलेक्शन प्लैंक आल्सो, वो अलग बात है ना, वो दूसरी बात है, लेकिन अगर वो किसान से मांगेगा बताओ कि तुमने इरिगेशन किया था और तुम पानी का एसिडिटी स्टेटस ये था या सॉइल आपकी इस लेवल की थी, उसका डेटा दो, ये सब अगर मांगने जाएगा ना तब समझ में आएगा, वो मांगेगा तब ना उसको समझ में हो, वो मांगेगा तभी ना कि ये सब फैक्टर्स हैं जिससे कि 45 आ नहीं सकता। नहीं ये अल्टीमेट यानी हम लोग हार गए थे केस, नहीं वो ठीक है, बिकॉज इट वाज नॉट फॉट वेल। एग्रीकल्चर जो ICR का जो उसके फेवर में वो नहीं जाता है, हमेशा किसान के फेवर में जाता है, वो तो ठीक है, वो देखिए ना, वो तो ऑलरेडी वो उसके हिसाब से ही इज विक्टिमाइज्ड बिकॉज इकोनॉमिकली हैज लॉस्ट, वो तो विक्टिमाइज फील करेगा कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया इतना नहीं मिला मुझे, लेकिन उसने जो सही नहीं किया वो बताना हमारा जिम्मेवारी है ना, जज को ये तो बताना है कि इसने ये करना चाहिए था, इसने ये चीज़ नहीं करी,
ये हमें बताना चाहिए था। वो बताने के लिए हमें जानकारी रखने की ज़रूरत है इस वैरायटी की कब सोइंग होनी चाहिए, 20 नवंबर के आसपास होनी चाहिए कि 5 दिसंबर तक होना चाहिए। एक हमारी वैरायटी है, बता रहा हूँ मैं, हमने रिलीज़ किया नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन के लिए, और उसको अगर आप 30 नवंबर के पहले लगाते हैं गेहूँ में, हाँ 2851 HD 2851, ठीक है, सबसे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है अभी इस वक्त, वो जिसको मध्य प्रदेश गेहूँ के नाम से उसको ये भी मिलता है, प्रीमियम भी मिलता है। हाँ, बहुत ईल्ड बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन जब आप 30 नवंबर के बाद सोइंग करेंगे तब उसमें टिलर्स 6, 7, 8, 9 आ जाएंगे। वही अगर आप 15 नवंबर के आसपास लगाएंगे ना, 2 ही टिलर आ जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर उससे थोड़ा हाई होता है, 2 टिलर्स ऊपर आएगा ही नहीं, तो किसी को कुछ मिलेगा ही नहीं, किसान को, है ना। वो बताएगा नहीं मैंने 28-51 लगाया था, हमें 40 क्विंटल नहीं मिला, 22 क्विंटल मिला है, वो बताएगा। हम प्योरिटी टेस्ट करेंगे, हाँ सही है, वैरायटी वही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने 30 नवंबर के बाद लगाना था, उसने 15 नवंबर के पहले लगाया। हमने उसको प्रूफ पूछना है कि तुमने लगाया, बताओ कि 30 के बाद लगाया, दिखाओ कैसे प्रूफ है, कहाँ पे प्रूफ है तुम्हारे पास। तो ये सब दिक्कत है, बहुत आसान नहीं है। तब ऐसे पूछने लेंगे तो किसान कुछ और बताएगा, तो जो कंज्यूमर का जो जज बैठेगा तो फिर सोचेगा नहीं नहीं ये तो इतना डिटेल तो कोई कर नहीं सकता, तो उसके किसान की बात सही होगी और दे दो उसको, ऐसा हो सकता है। लेकिन इन रियलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम द पोटेंशियल जो हम देते हैं इज़ एटलीस्ट 20 to 30% लेस दैन जेनेटिक पोटेंशियल। तो उससे कहीं ऊंचा जा सकता है किसान, अगर सही तरीके से करे तो। अगर सही तरीके से नहीं करते हैं तो फिर तो उसका प्रॉब्लम था ही है। अगर आप बच्चे को खाना ही नहीं देंगे तो कैसे अच्छी तरह से करे, अपन पे वो तो है ही है, उसको सुविधा नहीं मिलेगी पूरी तो कैसे आगे आएगा। सो सेम प्रॉब्लम इज विद द क्रॉप्स ऑल्सो। अब बहुत सालों के बाद कोई कहे कि इसकी देखभाल सही नहीं करी तो फिर उसका क्या होगा। मल्टी लोकेशन ट्रायल पे जाती है तो फिर जैसे सबके वहाँ से तो सिमिलर डाटा हमें नहीं मिलता, जैसे कहीं हाँ, नो इट इज स्टैटिस्टिकली वेरीफाइड। उसने ऐसा होता है ना, वी हैव 3 kinds of checks utilized. One is known as लॉन्ग टर्म चेक, जिसका हमें पिछले कम से कम 15 से 20 साल से इसका इन्फॉर्मेशन मालूम, परफॉर्मेंस मालूम है, एक वो है। दूसरा जो लेटेस्ट रिलीज चेक, या तीसरा व्हाट इज़ नोन एज रीजनल चेक। ये 3 चेक्स हम लगाते हैं हर एक ट्रायल में। तो इनका हमें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से भी मालूम है, किसी का जो बेस्ट परफॉर्मेंस वो भी मालूम है, और किसी का रीजनल अडाप्टेशन भी मालूम है। तो इन तीनों की यार्डस्टिक्स साथ में देखेंगे, जो नई आने वाली है, इन तीनों को उसके तोड़ना है, तभी वो उससे बेटर है ना। तो यू नो इट, जो हर लोकेशन में उसका अलग अलग परफॉर्मेंस आएगा, लेकिन हर लोकेशन के अंदर वो उसको सरपास करना पड़ेगा। फिर डिसाइड करते हुए डिसाइड करें कितने लोकेशंस में उसने ये काम किया है ना। जैसे 20 लोकेशंस में है तो 15 में, 16 में, कितने में किया उसने, और ओवरऑल उसका एवरेज परफॉर्मेंस कितनी है ओवरऑल द लोकेशंस, एंड इज विद इन द एंड सिग्निफिकेंटली सुपीरियर टू द चेक है कि नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं रखते, ऐसा तो हो भी नहीं सकता, ऐसे नहीं रखते। ये तो काफ़ी डिमांड लोग तो रखते हैं कि 10% मिनिमम होना चाहिए, वो वही रखते हैं जो एक्चुअली नहीं जानते हैं। इस तरह की चीज़ें वही करते हैं जो रूमों में बैठ के ब्रीडिंग करते हैं या रूमों में बैठ के लीडर्स बनते हैं, वही करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो 10 सालों में आपको 100% इंक्रीज मिलना चाहिए, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसी चीज़ें बायोलॉजिकल एंटिटीज़ में नहीं हो सकते। यू शुड बी रीजनेबल, यू शुड बी लॉजिकल, एंड इट शुड बी वेरी वेल सीन फ्रॉम द डेटा यू आर जनरेटेड कि ये, जैसे हमने जो PBW 343 रिलीज़ किया इसमें वीट में, उसकी ईल्ड 45 क्विंटल्स था, ठीक है उसका। अब किसी भी हिसाब से वो 25 क्रॉस ही नहीं करता। हम उसको यूज़ ज़रूर करते हैं एज ए चेक, लेकिन हमें पता है उसको बीट करना ऐसे ही बाएं हाथ का खेल है। 25 क्विंटल कुछ भी नहीं है ना। तो वो आज कोई कहे कि उसी 343 को पूरी तरह से कंट्रोल दे दो, वो उतना ईल्ड करेगा, वो करेगा ही नहीं किसी हिसाब से, बिकॉज इट हैज़ लॉस्ट इट्स एनवायरमेंटल अडाप्टेशन ऑफ द काइंड विच वॉज देयर इन 1994 when it was released. अब तो सिचुएशन चेंज हुआ है, so it is not able to adapt to the current situation. So we have to keep on evolving, चेंज करना ही पड़ेगा। तो उसको एक स्टैंडर्ड में रख सकते, इसलिए यू हैव टू डायनेमिकली कीप चेंजिंग देम। बट उसको अभी भी इसलिए रखते हैं क्योंकि वो पोटेंशियल उसका जो 45 था तो आज के दिन उसका 25 है। तो ये जो नई वेराइटीज़ हम निकाल रही हैं उसका जो बिहेवियर है वो उसी के आसपास है कि नहीं है। जैसे 25 इस साल है, नेक्स्ट ईयर भी 25 के आसपास आएगा या थोड़े बहुत कम होगा, लेकिन 10 नहीं होगा वो,
अगर वो 10 हो गए इसका ट्रायल में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो वो एक इन्फॉर्मेशन देगा, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे इवैल्यूएट करते हैं, है ना। तो दिस इज द ओनली वे वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि दिस न्यू प्रपोज वैरायटी इज स्टेबल, डज नॉट फ्लक्चुएट ओवर द 3 years फ्रॉम द 343 और अदर चेक्स, एंड द बेस्ट परफॉर्मर तो है ही है। एक तो लेटेस्ट चेक हम देंगे, लेटेस्ट रिलीज वैरायटी देंगे ही देंगे, जो हाईएस्ट परफॉर्मर है वो तो देंगे। साथ में ऑफ कोर्स जैसे 10 इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर रही हैं, हर एक का मान लीजिए तीसरे फाइनल ईयर में हर एक का आता है, तो आपस में कंपटीशन तो है ही है। हर वैरायटी क्लेम करेगा कि वो बेस्ट चेक से भी बेटर है, तो हम जो अपना प्रपोज करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए, नोटिफाई करने के लिए, उसमें बताएंगे हम हमारा इनकी जो बेस्ट क्वालिफाइड वैरायटी उससे भी बेटर है, इसलिए हमारा वैरायटी नोटिफाई करो, है ना। तो आगे बताऊंगा मैं उसका भी। ओके, उसके बाद जो एक्ट के अंदर जो सर्टिफाइंग एजेंसी होती है वो 2 तरह की है, एक तो सेंट्रल सर्टिफिकेशन एजेंसी है, एक स्टेट सर्टिफिकेशन एजेंसी है। सेंट्रल वाली सर्टिफाइंग एजेंसी है वो सेंट्रल लेवल पे काम करती है, खेतों में नहीं जाती वो, एक्चुअली स्पीकिंग जाती है तब जब कोई लिटिगेशन या जब कोई वेरिफिकेशन चाहिए, अदरवाइज उसका वो काम नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। तो स्टेट ने भी इसी एक्ट के अंदर अपना सर्टिफिकेशन कमेटी बनानी है, अपनी रिलीज कमेटी बनानी है। हाँ, नहीं रिलीज की बात नहीं कर रहा, मैं सर्टिफिकेशन बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, वो तो रिलीज हो गई है ना। सर्टिफाई करने वाली स्टेट एजेंसी है। जब स्टेट एजेंसी का सर्टिफाई किया हुआ मटेरियल कोई और ये सीड कंपनी बताती है या फार्मर बताता है ये क्वालिटी वो नहीं है, तब सेंट्रल एजेंसी उसको वेरीफाई करती है अपने सेंट्रल लैब में। इसी एक्ट के अंदर सेंट्रल सीड टेस्टिंग लैब है और स्टेट टेस्टिंग लैब है। तो पहले अगर मान लीजिए कंपनीज गलत कर रही हैं, तो जो स्टेट सर्टिफाइंग एजेंसी है ये वाली, वो इसको वेरीफाई करते हैं अपने लैब में, जो स्टेट सर्टिफिकेशन लैब है वहाँ पे, स्टेट सीड टेस्टिंग लैब है वहाँ करती है। वो तो हो गया। अब उसके बाद कोई फार्मर्स और कंपनीज दोनों कहते हैं कि जो इन्होंने सीड टेस्ट करके हमें दिया और वेरिफिकेशन बताया वो खेत में नहीं काम कर रहा, देन द सेंट्रल टेस्टिंग लैब विल डू इट। अगर जब कोर्ट में जाते हैं लिटिगेशन, चाहे कंज्यूमर कोर्ट हो चाहे कोर्ट में, लेकिन उसमें जो डिसीजन सेंट्रल टेस्टिंग लैब देती है वो ही सुपरसीड करता है डिसीजन पे। देन द स्टेट सर्टिफिकेशन इन द एक्ट ओनली, इट इज़ इन द एक्ट ओनली। जो स्टेट वाली जो टेस्टिंग लैब का डेटा है उसको इट विल बी थ्रोन अप, वॉट एवर इज प्रोड्यूस बाय द सेंट्रल टेस्टिंग लैब दैट विल बी एक्सेप्टेड। फिर अपील करने के लिए कोई भी अपील कर सकता है इसमें कि 30 दिन के अंदर, चाहे वो फार्मर हो चाहे सीड एजेंसी हो, जो भी इनकी लिटिगेशन का वही है कि जो एक्ट के अंदर जो क्वालिटी है, प्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, वो सब नहीं कर रहा है, तो 30 दिन के अंदर उसको आफ्टर ही प्रोक्यूज द सीड और प्रोक्यूज द डेवलप्स द डेटा, 30 दिन के अंदर नोटिफाई करना है, बताना है कि हमें इससे प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम 30 दिन के अंदर बता रहे हैं आपको। जैसे हार्वेस्टिंग के समय कोई प्रॉब्लम हो ग्रेन सीटिंग से, हार्वेस्टिंग का टाइम मालूम है तो 30 दिन के अंदर अंदर वो बताना है। बट अपीलिंग अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी जो स्टेट लेवल पे है या सेंट्रल लेवल पे, उनको दोनों को ये परमिशन है कि अगर वो कन्विंस्ड है कि 30 दिन से ज़्यादा दिन भी लग जाता है किसी को अपील करने में, वो उसको चेंज कर सकता है। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जैसे पेटेंट लॉ में, इसमें वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऑलवेज अ बेनिफिट इज़ गिवन टू द अग्रीव्ड पर्सन बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू natural calamities or nature interaction of the seed material. So therefore always priority is given to the people, either farmers or the seed agencies cultivating in this one. Then ये सबसे important लोग हैं सीड इंस्पेक्टर्स, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के लिए और प्राइवेट सेक्टर के लिए। ये भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वही सर्टिफिकेशन के लिए इंस्पेक्ट करने जाते हैं सर्टिफाइड मटेरियल का, किस तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है। उनको काफ़ी ये इस पुराने एक्ट में काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं, फिर भी पावर्स हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी गोडाउन में चेक कर सकते हैं, लेकिन जब मर्जी तब नहीं जा सकते, नोटिफाई करना पड़ेगा। और अगर सील करना है या कोई ऐसे कंप्लेंट, अनलेस देयर इज़ अ कंप्लेंट विच इज़ रूटेड थ्रू द डीएम और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, तब तक वो रेड नहीं कर सकता। लेकिन नया एक्ट में ये भी प्रपोज्ड है कि जब मर्जी जहाँ मर्जी जाए, तोड़े, जो करना करे, ही कैन डू दैट, है ना। इसमें काफ़ी और भी रिस्ट्रिक्शंस है, खुद जाके अकेले जाके नहीं कर सकता, साथ में 2 और जो रेस्पेक्टेबल ऑफिशियली आइडेंटिफाइबल पीपल आर देयर,
2 more people are there with him to collect the samples. तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें प्रोविज़न है, जैसे 3 सैंपल मिनिमम इंस्पेक्ट करने के लिए 3 सैंपल, मैं इसको आपको स्लाइड्स में दे रहा हूँ, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। 3 सैंपल लेनी है मिनिमम। कोई अगर उसको कोई किसी चीज़ का शक है या वो वेरीफाई करना चाहता है कि कहाँ स्टोर किया हुआ किसी कंपनी ने, कि ये ब्रीडर सीड है, या ब्रीडर सीड नहीं, ये सर्टिफाइड सीड है, रखा हुआ है, तो ही कैन गो प्रोवाइडेड ही हैज़ इन्फॉर्म द कंपनी कि मैं फलां दिन आ रहा हूँ। फिर वहाँ पे ही कैन डिसाइड टू टेक सैम्पल्स, दैट टू अलॉन्ग विथ 2 अदर पीपल, एंड ही विल टेक 3 सैम्पल्स। और एक सैम्पल एक ही साथ 3 सैंपल बनाएगा एक ही साथ। सैम्पलिंग का एक अलग क्लास ले सकते हैं, सैम्पलिंग किस तरह से करना चाहिए। किसी ने अगर 100 टन रखा हो, किसी ने अगर 1 टन रखा हो, किसी ने 1 क्विंटल रखा हो, तीनों में सैंपल तो 3 ही करने हैं, लेकिन उसको कैसे करें उसका एक अलग तरीका है, वो अलग क्लास ही लगेगा। हाँ, नो, देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग, प्रोबेबिलिटी के ऊपर है वो, किस तरह का सैम्पलिंग करनी है। रफली मोटा मोटी ऐसा होना चाहिए 3600 सीड का मिनिमम नंबर होना चाहिए जो क्वांटिटी है, इन ऑर्डर टू सी द प्योरिटी एस्टिमेटेड विद इन 5% ऑफ एरर, प्रोबेबिलिटी इज 0.05। उस बेसिस पे मोटा मोटी 3200, नॉट 600, 3200 सीड होना चाहिए। जो वॉल्यूम उसका वही, जैसे मेज़ होगा तो 3200 सीड का जो वेट होगा वो और है, गेहूँ होगा उसका वेट और है, सरसों होगा उसका वेट और है, लेकिन नंबर वही होगा। उसी हिसाब से किसी का 5 ग्राम होगा, किसी का 29 ग्राम होगा, किसी का 62 ग्राम होगा ऑन एन एवरेज, है ना। इसलिए वो सैंपल का साइज डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड इज बाय द नंबर। मतलब उसमें इम्प्योरिटी अगर है तो 5% के एरर के विद इन दैट एरर अगर आपको एस्टिमेट करना है प्रोपोर्शनल, तो मिनिमम 3200 सीड का सैंपल होना चाहिए वैसा, ठीक है। ही कैन टेक सैंपल्स फ्रॉम एनी सीड ऑफ एनी नोट। वो इस जो पुराने एक्ट में उसी सीड का इन्फेक्शन कर सकते जो नोटिफाइड है अंडर द सीड एक्ट। जो नोटिफाइड नहीं है, जो आप लोग हमसे लाइसेंस करके लेते हैं, बहुत कम लोग इसको सर्टिफाई करते हैं, बहुत कम लोग, और फिर भी आप इस पे लायबल हैं क्योंकि हमारी वैरायटी नोटिफाइड है। भले ही आपने उसको सर्टिफाई नहीं कराया, लेकिन है तो नोटिफाइड हमारी। सो देयरफॉर इफ सम फार्मर गोस विद द रिसीट ऑफ योर कंपनी एंड सेज दिस इज द सीड आई गॉट फ्रॉम देयर एंड दिस इज द क्वालिटी ऑफ इट, इंस्पेक्टर को दिखाएगा वो, तो वो आपके पास 1 हफ्ते का एडवांस नोटिस दे के आपके पास आ सकता है एंड वो सैंपल कर सकता है। क्योंकि आप बताएंगे ना कि ये वैरायटी हमारी है, आपसे IRA से हमने ली है, यहाँ रखा हुआ है, और वो नोटिफाइड है तो वो उसको सैंपल कर सकता है। वही आप जो ब्रीड करते हैं, आप जो वैरायटी बनाते हैं, आप उसको अगर नोटिफाई नहीं कराते हैं, आपकी वॉलंटरी है, नोटिफिकेशन इज़ नॉट से मैंडेटरी नहीं है ना, वॉलंटरी है। तो अगर आपने नहीं किया तो इंस्पेक्टर आपके कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो वो न्यू सीड पॉलिसी के हिसाब से आपने कंपनीज ने यूज़ किया हुआ है। जो भी सीड कंपनीज ने एक न्यू सीड पॉलिसी एक बनी थी, उसमें ट्रांसजेनिक भी, इंपोर्ट भी, सभी उसमें कवर्ड है ना। उसमें वही है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ट्रूथफुली लेबल करके कंपनी उसको सेल कर सकती है, लेकिन ओनली टीएल सीड नोटिफाइड नहीं रहता मोस्टली, वो तो हो ही नहीं सकता। जो सीड पॉलिसी वाले जो सीड है जो इंपोर्ट होके आता है या कंपनी प्रोड्यूस करती है अंडर सीड पॉलिसी, उसमें उनके पास वो पावर कुछ भी नहीं होता, है ना। वो किसी और से प्रोड्यूस नहीं करा सकते, किसी और से सेल भी नहीं करा सकते, अपने एजेंसी से कराना पड़ेगा, अपने डीलर से कराना पड़ेगा, और फ्रीली कोई सेल नहीं कर सकता। वो सब चीज़ उसमें रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो किसी चीज़ को अपने हिसाब से सेल कर सकते हैं, और उसको कोई सीड इंस्पेक्टर चैलेंज नहीं कर सकता। वो प्राइवेट सेक्टर केवल सब्सिडी लेने के लिए केवल कुछ वैरायटियां नोटिफाइड, नहीं, वो तो नोटिफाई कराते हैं, वो सब्सिडी उन्हीं की मिलती है जो नोटिफाइड है, जो नोटिफाइड होती है वैरायटी। ये सही है। So you can take a notified kind of seed from any person selling such seed, or any person who is in the course of conveying, delivering, preparing, जो भी कुछ भी पावर है इसको सैंपल करने के लिए, एंड परचेज कंसाइनी। लेकिन ये सभी कहने में आसान है, लेकिन उसका अंडर ये क्या है, द अंडर करेंट इज दैट ही विल हैव इन्फॉर्म्ड कि हम 1 हफ्ते पहले इन्फॉर्म किया है कि हम सैंपल करने आएंगे, है ना। तो ये दोनों एक तरह से साथ में नहीं चलती हैं, एक दूसरे, जैसे कोई भी जो गलत काम कर रहा हो इसी आड़ में बच सकता है कि आपने 7 दिन पहले हमारे कहाँ नोटिस दिया,
लेकिन अगर किसी किसान ने, किसी और ने रिटन कंप्लेंट डीएम को या किसी को दिया हुआ हो इस पर्टिकुलर सीड, उस बेसिस पे ही कैन टेक ए चैलेंज। वैसे अपनी मर्जी से जाके नहीं कर सकता, ठीक है। कहने के लिए तो है, इसका पावर है, कोई भी ट्रक ले जा रहा है उसको रोकने का, लेकिन वो तभी रोक सकता है जब किसान और some another parallel agency who is also retailer of this material has said यहाँ से हमने सोर्स सीड लिया, सब गलत आया है, ऐसा कुछ लिख करके एविडेंस के साथ नहीं दिया हो, और डीएम ऑफ दैट प्लेस और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हैज़ नॉट एग्रीड विद द कंप्लेंट, तब तक इंस्पेक्टर उसको रोक नहीं सकता। तो ये भी दोनों चीज़ें हैं, लेकिन नया एक्ट में ये सब नहीं है। नया एक्ट में सीड इंस्पेक्टर को फुल फ्रीडम है, जिस मर्ज किस सीड को जैसे भी वो करना चाहे। ओके, ये सब रूटीन है, किस तरह से इसको किस तरह से पकड़े, उसको किस तरह से कमिट कराए, ये सब चीज़ें नॉर्मल लीगल लैंग्वेज है। आपने पेटेंट लिखा तो ये सब लैंग्वेज आप भी समझ गए होंगे, इसको पढ़ने से मज़ा आएगा। सी ही कैन एंटर सर्च एट ऑल रीजनेबल टाइम्स with such assistance, if any, as he consider necessary, any place which he has reason to believe that an offence under this act has been conducted. ठीक है ना? तो he can look at any record, register, document, any other material found objectionable in any place mentioned. तो ये क्लॉज सी क्लॉज आता है ना, तो उसके क्लॉज सी से क्लॉज ए जाता है। क्लॉज ए में आपको क्लियरली पता है कि उससे पहले बताना है कि मैं आ रहा हूँ, है ना? तो उसी एक साथ घूम घूम के फिर वही आता है कि पहले बताया हुआ हो, और या तो कोई कंप्लेंट हो, तब वो किसी जगह जाके वो अपना ये कर सकता है। ये भी देखिए, इसमें भी एक मज़ेदार चीज़ है। वेयर एनी सैम्पल ऑफ एनी सीड ऑफ एनी नोटिफाइड काइंड वेराइटी इज टेकन अंडर क्लॉज ए सबसेक्शन 1, जो पीछे था यही सेक्शन 1 का आ गया। इसमें हाउ डू यू गो बैक? हाँ, ये wherever the seed inspector intends to take, नहीं सॉरी, गलत हो गया, आगे जा रहा हूँ क्या मैं? हाँ या ओके, ठीक। As far as possible, call not less than 2 persons to be present at the time when such action is taken. तो ये clause A is notified variety. clause A में ये लिखा था कि you can check anything which is notified only. ठीक है, अगर वे जो जहाँ पे गया है वो नोटिफाइड है, आपके गोडाउन में आ गया और वो आप नोटिफाइड वैरायटी सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसे जाएगा, लेकिन साथ में कम से कम 2 आदमी, 2 साथ में कोई लेगा। टू बी सच एक्शन इज टेकन एंड टेक देयर सिग्नेचर्स ऑन द मेमोरेंडम टू बी प्रिपेयर्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर। सो कोई मतलब बच के जाना हो किसी को तो बच के निकल सकता है इस केस में, और कोई 2 आदमी तैयार नहीं हुए साइन करने के लिए तो आप सैंपल करते रहो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। एक रूरल सिचुएशन में कोई जाए और पकड़े और कोई आदमी 2 तैयारी ना हो कि हाँ मैं भी मानता हूँ कि आपने सैंपल किया है और ये फलाने बैग से निकाला है, जब तक वो तैयार नहीं है तब तक वो सैंपल का कोई वैल्यू नहीं है ऑन द एक्ट फॉर्म। ठीक है, ऑफकोर्स पावर तो बहुत है, द प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल कोड इसमें है, प्रोसीजर कोड आता है, बट वो तब है जब सारी चीज़ें एक साथ बनी हुई हो और पूरा गोडाउन भी सीज कर सकता है, प्रोवाइडेड देयर इज़ इनफ से एडवांस इंफॉर्मेशन or a complaint which is legitimately approved by the district authorities and 2 people are there to ascertain that this person, the inspector had gone in and picked up the material and this happened in front of me, a sample उसने लिया जो वेरीफाई करने के लिए मेरे सामने लिया है। ये सब चीज़ें साइन करने के लिए 2 आदमी होंगे या मिनिमम 2 आदमी होंगे तो होगा। उसमें भी कंडीशन है 2 आदमी उसके साथी नहीं होने, उसके भाई बहन होने नहीं होना चाहिए, वो गांव के होने चाहिए, जो मतलब उसी सर्कमस्टांस के होने चाहिए वहीं के। ओके, whenever the seed inspector intends to take a sample of any seed, notify he shall give notice in writing, ये सब है, then there is such intention the person from whom he intends to take sample, except in special cases under this act, वही जहाँ पे वो कोई कंप्लेंट आया हुआ हो वहाँ पे वो 3-4 लोगों को साथ में ले जाके कर सकता है। अदरवाइज नॉर्मली अपनी मर्जी से एज ए रूटीन, जो रूटीन क्वालिटी मेंटेनेंस वाली जो होता है ना, जो बैच वाइज किसी भी प्रोडक्ट डिलीवरी में बैच वाइज इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता जब तक वो पहले से नहीं बताता है।
तो इसमें प्रोविज़न मिल जाता है, जब वो आने वाला होता है उस दिन सब कुछ वैसे ही करो जैसे सीड एक्ट के अंदर है ना। जो आपका पैकेजिंग हो, लेबलिंग हो, जो आपकी प्योरिटी लेवल टेस्टिंग हो, जैसे ग्रेडिंग हो, ये सब चीज़ें पार्ट में आती है ना, वो सब उस वक्त करते रहो जब वो उसने बताया आने के दिन, तो आपका वो सर्टिफिकेशन इंस्पेक्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। तो वही बात है। बट यू मस्ट अप्रिशिएट दिस वॉज डन इन 1966 and that was the time when there was not a single seed company in India of its own. ठीक है, so one must appreciate that when it was done. It was not to prevent people from investing in becoming seed industry, isn't it? So इसलिए one should appreciate that they are given this kind of flexibility so that nobody feels the bureaucratic indulgence as an impediment. अब हम हर चीज़ को ऐसे ही समझते हैं ना, जैसे म्यूनसिपालिटी वाला पानी चेक करने के लिए आसपास आता है, हम सोचते हैं कि ये आ गया, ये नहीं सोचते हमारे लिए आया है, ये नहीं सोचते, फर्स्ट मन में ये आता है ये एक और प्रॉब्लम आ गया अब। तो उसी तरह का अवॉइड करने के लिए दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड। बट नाउ विथ वेरी गुड इंडस्ट्री, आई मस्ट बी प्राउडली सेइंग, India is one of the developing countries where despite the presence of multinationals, the local seed industries have been flourishing in the seed sector. ठीक है, चाहे वो मॉन्सेंटो हो, चाहे सिंजेंटा हो, चाहे बायर हो, चाहे कोई भी हो, वो सभी compete कर रहे हैं. Only in identified small sectors they are having their prominence. In every other case, either by sub-licensing or by presence of their materials in a small extent, our industry has been able to stand up. And they have a powerful association also. ठीक है, तो it is fine. So now they will be willing to take it to 2004 regulation. प्रॉब्लम भी वही है कि क्यों पास नहीं हो रहा है, उसमें भी वही चीज़ें हैं जिससे कि किसी को दिक्कत होगी अप्रूव करने में. मतलब हर सीड जो बिकेगा वो रजिस्टर्ड सीड होगा, हर सीड. अभी तो सीड पॉलिसी में वो नहीं था, वॉलंटरी था. अब नोटिफिकेशन नहीं है, अब रजिस्ट्रेशन है, लेकिन हर चीज़ रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही बिकेगा. चाहे आप पॉलिसी यूज़ करके कर रहे हो, ब्रीड नहीं कर रहे, इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन उसका होना है. और रजिस्ट्रेशन का स्टिपुलेशंस आर टू मेनी, तो जिससे कि वो क्वालिटी उसकी असर्टेन हो ही जाएगी. कोई भी मटेरियल आ गया, मल्टीप्लाई कर लिया आपने, बेचना शुरू कर दिया, वो नहीं हो सकता है ना. तो दैट इज़ गुड एंड प्रोग्रेसिव. रजिस्टर्ड सीड इंडिया में तो फॉलो नहीं करते, अभी है नहीं, अभी सीड एक्ट में नहीं है. वही तो बता, 2004 वाला सीड एक्ट है ना, उसमें रजिस्ट्रेशन ही है, नोटिफिकेशन नहीं है. और सर एक और, सपोज आपने कोई वैरायटी डेवलप की, उसको पीपीबी एफआरए में आपने दे दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, और आफ्टर डस्ट टेस्टिंग इन केस आपकी वैरायटी स्टैंडर्ड उसमें आ रही है, तो उस वैरायटी से यदि आप सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या वो रजिस्टर्ड सीड होगा? नहीं, इट इज़ पीपीएफआरए रजिस्टर्ड प्रोटेक्टेड सीड होगा वो. इट विल नॉट बी रजिस्टर्ड और नोटिफाइड, वो मजबूरी नहीं है. इट इज़ नॉट नेसेसरी. गवर्नमेंट सेक्टर ने क्या किया, जो नोटिफाई करते हैं उसको रजिस्टर करते हैं पीपीएफआरए में. ये सीड एक्ट रजिस्ट्रेशन इज डिफरेंट, दैट इज प्रोटेक्शन, इज नॉट रजिस्ट्रेशन. प्रोटेक्शन बाय रजिस्ट्रार, ठीक है. It is a protected material by the registrar, so that way it is registered, but it is protected. Whereas this registration is in the act itself, seed act for registration, जहाँ पे आपको registration for seed act. So both are not at deviance, both can be complementary existing. सरकारी इसमें जो notify करते हैं उसी को protect करते हैं. हालांकि हमें blame भी मिलता है कि सरकारी सिर्फ 120 है और प्राइवेट सीड प्रोटेक्टेड आज के दिन कम से कम 800 कुछ है. तो 120 800 क्यों है? 800 उनके लिए नोटिफाई करना कोई है नहीं, कोई ट्रायल करने की कॉम्पिटिटिव ट्रायल करना है नहीं, और एक वैरायटी एक कंडीशन के लिए एक साल एक ही वैरायटी आएगी वो भी है नहीं. चाहे पंतनगर, IRA, PAU, HAU, कोई भी कॉम्पीट करेंगे, किसी की एक वैरायटी आएगी एक साल में सबसे अच्छी. बट इधर बायर भी करे, सिंजेंटा भी करे, न्यूजीवीडू भी करे, कोई भी करे, एक साथ हर एक अपना अपना रिलीज़ कर देगा अंडर द सीड पॉलिसी एंड उसको डस्ट टेस्टिंग में पास कराएगा. तो इसीलिए वो नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है. तो यही प्रॉब्लम है. वो रजिस्ट्रेशन अलग है, तो उसमें बेचने के लिए उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. किसी और ने अगर उसका इस्तेमाल कर लिया एंड नाम न्यूजीवीडू को नहीं दिया,
और उनको कॉम्पनसेशन नहीं दिया या बेनिफिट शेयर नहीं किया, तब न्यूज़ीवीडियो कैन चैलेंज हिम। गलती करने वाले पे कोई रोक नहीं है। प्रोटेक्शन में भी जो गलती करता है उसको पकड़ना आपकी जिम्मेवारी, अगर आपके उसने चोरी की है। जब तक आप उसको प्रूव नहीं करना कि मैंने नहीं चोरी किया, प्रूव आपको करना है उसने चोरी किया, है ना। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद द इन्वेंटर इन द PPFRA। आपको प्रूव, खर्च भी आपको करना पड़ेगा प्रूव करने के लिए, सैंपल करके DNA एनालिसिस करना, जो करना खर्च आपका ही है। उसको नहीं पता ना कि मैंने तो अपनी वैरायटी तुम्हारी वैरायटी नहीं है, कर लो, तुम प्रूव कर लो, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मेरी तुम्हारी नहीं है, वो वही बोलेगा। आपको सब खर्च करना पड़ेगा टू प्रूव कि वो तुम गलत बोल रहे हो। तो एक तो आप पकड़ना भी आपको ही पड़ेगा, प्रूव भी आपको ही करना पड़ेगा। उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है बहुत ही खर्चीला होता है। उसमें चैलेंज करने के लिए बहुत ही आइटम्स मिलती हैं, यहाँ तक कि वो प्रूव करना मुश्किल हो जाता है कि ये कहाँ प्रूफ है कि जो सीड तुमने जो टेस्ट किया DNA यूज़ करे, मान लिए तो DNA के लिए आपने यूज़ किया सोर्स सीड, वो हमसे लिया है, क्या उसका प्रूफ क्या है? वही प्रूव करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना। सो इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। इट लुक्स ईजी व्हेन यू रीड थ्रू। अच्छा, काफ़ी ग्लैमरस लगता है, चलो नया एक्ट आ गया, इंडिया में प्रोटेक्शन हो गया, किसान का प्रोटेक्शन हो गया, लेकिन उसको असली में किसी ने अगर गलत किया भी है, उसको प्रूव करने में बहुत ज़्यादा नाचना पड़ता है। इतना आसान नहीं है, खर्च भी होगा और इतनी काम करने की ज़रूरत हो जाती है। इतना करने के बाद कोई ऐसे सवाल कोई पूछ लेगा, फिर दोबारा उसको प्रूव करने के लिए एक और बात करना पड़ेगा। इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। हर लिटिगेशन, इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज जो प्रोटेक्शन वाले लिटिगेशन है ना, दे ऑल्सो गो थ्रू 8 to 12 years वहाँ पर भी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ओनली, सब तंग होकर फिर कर लेते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ गार्ड तो है ही, सो दैट पीपल कैन, इफ़ दे एक्चुअली स्टील मटेरियल फॉर द शेम ऑफ इट, वो आके आपके पास बेनिफिट शेयर कर लेगा, क्योंकि उछल तो जाता ही है, कंपनी के नाम तो आता ही है, भले ही आप प्रूव कर ना पाएँ बाद में, लेकिन जो नाम तो आ ही गया ना तब तक। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कंपनीज इसको पहले आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लेते हैं, अगर बेनिफिट शेयर करना तो कर लेते हैं, वो तो है ही, लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। सीड, इसीलिए सीड 2004 में उन दोनों को मर्ज किया है। असली प्रपोजल वही है कि इट शुड गो टुगेदर विद PPFRA प्रोविजंस, सो दैट दोनों इंडिपेंडेंटली ना हो, क्योंकि कॉम्पनसेशन इसमें भी है, कॉम्पनसेशन उसमें भी है, उसमें इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट शेयरिंग है, इसमें इन टर्म्स ऑफ द वैरायटी नॉट गिवन क्रेडिट बाय द पर्सन हु हैज़ ब्रेड इट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हाँ, ये देखिए मैंने बताया ना आपको 3 सैंपल करना है, उसमें से एक सैंपल को ही हैज़ टू गिव इट टू द पर्सन जिसका उसने सैंपल किया, और एक सैंपल उसको ही हैज़ टू गिव इट टू द सीड एनालिसिस सेंट्रल स्टेट टेस्टिंग लैबोरेटरी, है ना, और एक सैंपल अपने पास उसने रखना है, क्योंकि मैंने यही सैंपल दिया था उसको। कल को लिटिगेशन होता है कि जो डेटा आया वो उसका क्या प्रूफ है कि यही है, तो वो दिखाएगा ये सैंपल मैंने रखा था, देखिए ये नंबर है, ये सिग्नेचर है, तो इसको दोबारा करके मैच करेंगे, हाँ वो डेटा आया वो यही है। सो इट इज़ लाइक दैट। अगर उसमें ये भी प्रोविजन है, अगर जो जिस बंदे का आपने सैंपल किया उसने फिर मैं नहीं लूँगा, तुम ही रख लो, मैं नहीं लूँगा, अगर वो ऐसे कहता है तो उसको भी रिपोर्ट करना है, सीड एनालिस्ट को देना है, और सीड एनालिस्ट उसका 2 भाग बनाएगा। एक तो जो सैंपल उसको दिया वो तो दिया ही, ये जो जिसके यहाँ सैम्पलिंग किया है इंस्पेक्टर ने, उसको भी सीड एनालिस्ट 2 भाग करेगा, एक भाग को एनालाइज करेगा उसके साथ, दूसरे भाग को अपने पास रखेगा एज स्टॉक। क्योंकि कल को ये बताएंगे कि जो उसकी जो लॉट था वो भी यही था, ये जो मैंने टेस्ट किया वो भी वही है, इसलिए वो अगर कल को उसको मानता नहीं है जो कोर्ट का जजमेंट, तो वो बताएगा देखिए उसका हाथ आधा हिस्सा ये है, इसलिए वो वही है, जो उसके पास सैंपल है वो गलत था, अगर प्रूव हो जाता है तो। दैट इज now वही है, सेम थिंग। इफ द पर्सन फ्रॉम whom the samples have been taken refuses to accept one of the samples, the seed inspector shall send the material to seed analyst, and thereupon the seed analyst receiving the sample will divide into 2 parts and seal and fasten one of the samples, and other he will use it for analysis purpose. Okay. ये इसमें ऐसे चीज़ें बहुत हैं जिसमें कोई भी अगर कोई गलत काम करता है उसको पकड़ना, किस तरह से उसको कोई कॉन्ट्रवेन करता है और एक सिस्टम को उसको क्या चैलेंज करना, जैसे जस्ट लाइक ट्रैफिक रूल्स, नथिंग डिफरेंट, वो इसमें भी है।
लेकिन करने वाले इतना आसानी से कोई आपको बहुत ज़्यादा सीड इंस्पेक्टर इसमें सीड कंपनीज कोई है इसमें रिप्रेजेंट करने वाली हैं? आपका कोई आया कभी सीड इंस्पेक्टर? नहीं आया आपकी? एक तो है ही नहीं, कोई भी हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी तो सीड तो सेल करते ही हैं। इंस्पेक्टर इनके अभी आ ही सकता है, नोटिफाइड सीड तो ये भी तो बेचते हैं, हमारी वैरायटी बेचते हैं तो नोटिफाइड, तो इनके आ ही सकता, आ ही नहीं ना कोई कोई अंडरस्टार, सारे अंडरस्टाफ्ड हैं, हो गए नहीं है इंस्पेक्टर्स वहाँ, ठीक है। उनका तरीका है सर, हैं? उनका तरीका है बड़ा मैकेनाइज्ड है। हाँ दिवाली के पहले ये नहीं ये रिकॉर्ड हो रहा है तो ऑफ द रिकॉर्ड वाली बात नहीं करेंगे। ओके ओके, लेकिन ये सीड एनालिस्ट का रिपोर्ट है ना, जो जैसे IRA में एक सेंट्रल सीड टेस्टिंग लैब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो सेंट्रल वाला है, जो हमारे पास है यहाँ पे। अब नाउ दिस हैज़ मूव टू MoHU, पहले IRA में था, बना हुआ था, फाइनली एक डायरेक्टरेट बन गया तो दैट लैब वाज शिफ्टेड टू MoHU, जहाँ पे सेंट्रल सीड टेस्टिंग लैब है, CSTL बोलते हैं। वो विल वेरीफाई क्रॉस, एक तो उनके पास सैंपल जा सकता है, अगर किसी कंपनी को जो सीड एनालिस्ट ऑफ स्टेट ने जो किया उसके ऊपर भरोसा नहीं है एंड कोर्ट को क्लेम करता है, एफिडेविट देता है कि ये जो डेटा उन्होंने दिया गलत दिया है, जैसे आप वही वाली बात हो सकती है, तो तब जो कोर्ट बताएगी ठीक है हम CSTL से कराते हैं, तो वो सैंपल लीगल सैंपल जो है ना CSTL पास आता था हमारे पास। हाँ हाँ, बनारस के पास वही MoHU में वही है, तो वहाँ पे डेटा सही आता है, उसी को फाइनल डेटा मानते हैं, इसको नहीं मानते फिर। ओके, इसको छोड़ दो, वही है वो जो बताया था मैंने, वही in a central seed testing library for its report on the seed application the court shall ascertain that the mark and seal fastening, वो ये कि जो मटेरियल हमने भेजा वो वही है कि नहीं है, और डेटा जो आया सेंट्रल टेस्टिंग लैब से उसको फाइनली मानते हैं, तो ठीक है। हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है जो रिस्ट्रिक्शन है, जिसके बारे में जो सीड पॉलिसी का कॉन्ट्रवेंशन इसी में है। कोई भी एनी पर्सन कैन, नो पर्सन कैन for the purpose of sowing or planting, export or import anything that needs to be imported by seed of any kind, unless it conforms to minimum limits of germination, purity, वही पॉलिसी पॉइंट वही है। आप कोई भी इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन आपको ही एक सेट करना पड़ेगा, मतलब डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इसकी जर्मिनेशन 75%, सोयाबीन का फॉर एग्जांपल 75% है, या वीट का 95% है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ उन आपको वही फॉलो करना है सेट, लेकिन आपको कोई एजेंसी से प्रूव नहीं कराना है, दैट्स ऑल। आपने ही डिक्लेयर करना है, आपने ही उसका लेबल लगाना है, लेकिन उसको किसान यूज़ कर सकता है इन ऑर्डर टू मेक अ क्लेम, ठीक है। लेकिन आपके गोडाउन में कोई इंस्पेक्टर नहीं आ सकता अगर इस सीड की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको वही सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी टेस्ट कर सकती है कि जर्मिनेशन उसका है कि नहीं है उसका, एंड किसान को रिपोर्ट दे सकता है। किसान देन कैन मेक अ क्लेम थ्रू अदर कंज्यूमर कोर्ट लेवल्स, नॉट थ्रू द सीड एक्ट, कंज्यूमर एक्ट से करेगा, वो तो कंज्यूमर एक्ट के अंदर ही उसको किया है, ठीक है। एंड वही है, दोनों चीज़ें रखना उसने कि जर्मिनेशन क्या है, प्योरिटी क्या है, एंड इट ऑल्सो हैज़ टू द कंटेनर जिससे उसने सीड बेचना है उसके सारे मार्क वो सब होनी चाहिए, वैरायटी का नाम, किस तरह का कंडीशन है, क्या क्या उसका मिनिमम यील्ड है या क्या मैक्सिमम यील्ड है, ये सब चीज़ें उसमें भी आनी चाहिए। ये जैसे किसी और कंट्री से आप मंगा रहे हैं, उनकी जो सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है उस पर्टिकुलर मटेरियल का, भले ही वो इंडिया से नहीं मैच करता हो, उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड you prove that our condition of cultivation matches theirs. Otherwise, you have the freedom to do it on your own, separate setup. उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सीड के कोई बैग पे मेंशन होता है कि स्टार मार्क के कुछ कंडीशन अप्लाई या दिस में चेंज विद कंडीशंस टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यस यस यस, कैसे कवर करते हैं? वही है ना, 95% मेंशन है बट इट गोज से 85%, कैन दैट फार्मर कंप्लेन दैट दिस वैरायटी इज नॉट डजंट स्टैंड टू दिस? यस, वो उस कंप्लेन के साथ उसको प्रूफ रखना है कि जनरेशन का जो वाटर फील्ड कैपेसिटी में है कि नहीं सॉइल, वो भी प्रूफ कहीं ना कहीं से उसको दिखाना है।
क्योंकि एजेंसी बता सकती है पानी ही नहीं है तो जर्मिनेशन 95% कहाँ से होगा। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड पानी नहीं है खेतों में, कहीं पानी है कहीं पे नहीं है, चढ़ा नहीं है, जैसे भी हो, तो दैट अलोन इज़ इनफ। सो ही हैज़ टू प्रूव जो लूज पॉइंट्स है ना इसको प्रूव करने के लिए, तो वो स्टार तो वही है। कुछ नहीं कर सकता farmer। हाँ सही है, लेकिन नहीं, जो विजिलेंट फार्मर है वो उसी तरह से डेटा लेके ना सीड टेस्टिंग जो लैब्स है वहाँ से सैंपल करा सकता है कंप्लेंट के पहले, है ना, तो उनके ऑथेंटिक सैंपल होगा ना, तो वो जब करेंगे उनका तब कोर्ट नहीं पूछ सकती है कि मॉइस्चर था कि नहीं था, क्योंकि जो सीड टेस्टिंग एजेंसी ने एनालिस्ट ने सर्टिफाई कर दिया तो ही विल हैव टेकन केयर ऑफ दैट पॉइंट, या सैंपल्ड ऑन ओनली दोज रीजन्स वेयर द फील्ड कैपेसिटी इज एक्सेप्टेबल। दूसरी बात है, दिवाली वाली बात दूसरी है ना, करना है तो वो कर सकता है। ठीक है, चलिए, ये सब तो चेंज करते रहती हैं, तो सरकार इसको बदल सकती है, पेनल्टी करना नहीं करना है, कितना करना है ना, वो तो छोड़िए, इसकी दिस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इंडस्ट्री को दे हैव टू टेक केयर डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ पेनल्टी इज इम्पोज। अगर मान लीजिए आपको डी लाइसेंस ही कर दें, अभी तो वो नहीं है, लेकिन पेनल्टी कैन ऑल्सो बी दैट, यू कैन बी ऐसे ब्लैकड आउट, आपको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं, है ना, तो वो कर दिया फिर बड़ी मुसीबत हो जाती है। वैसे 3 अपॉर्चुनिटी देते हैं उसमें, फर्स्ट लिटिगेशन पे, फर्स्ट इस पे तो ब्लैक लिस्टिंग नहीं होता, लेकिन तीसरी बार भी आप फंस जाते हैं तो नॉर्मली ब्लैक लिस्टिंग हो जाती है। ब्लैक लिस्टिंग हो जाए फिर आपको नाम कंपनी का चेंज करना पड़ेगा, यही करते हैं ना ये मैंने देखा है, ब्लैक लिस्ट करते हैं, वो उसी का कोई सिस्टर कंसर्न ओपन करके, हाँ बस वही। इस रूल सबवर्ट करने में सबसे तेज़ हम लोग हैं, है ना, ये भूल जाते हैं कि जो रूल्स अपने फ़ायदे के लिए हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन दूसरा जब फॉलो करता तब तो पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन खुद भी तो हम करते हैं, है ना, तो ये तो गलत है। चलिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कंपनी का जो है नॉर्मली इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल फार्मर बेस कंडीशन, लेकिन क्योंकि कंपनी सारे कॉर्पोरेट लेवल पे होती हैं तो अपने अपने स्टैंडर्ड्स रखती हैं, तो उस हिसाब से वो कंपनीज को करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसको छोड़ो, आप इसको सी, दिस इज हाउ यू हैव टू डिफाइन, क्योंकि कोई कंपनी का जो प्राइवेट कंपनी है उसको डिफाइन कर दे और ये कर दे प्रोप्राइटरशिप का है, तो उसकी वो कंपनी एक्ट में नहीं आता, तब उसकी जो सर्टिफिकेशन वगैरह है उसके ऊपर कोई पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू उसका कोई रिश्ता नहीं है, देन इट विल हैव टू गो एज स्मॉल फार्मर बेस। उसमें ये सब प्रूफ चाहिए कि अब उसमें कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कि नहीं है, और डायरेक्टर है तो कोई रिश्तेदार है कि नहीं है, इस तरह की चीज़ें, वो सब देयर लाइक एनी अदर ये कमर्शियलाइजेशन पार्ट। इसको छोड़ देता हूँ मैं, ये भी हमारे पास रूल्स है, नहीं है तो दिक्कत नहीं है। मैं आप व्हाट आई विल ट्राई टू टेल यू इज दिस पार्ट, जो आगे आने वाले एक्ट है जो 2000 इसमें जो एक्ट अमेंड किए, काफ़ी बार अमेंड किए, जिसमें कि चीज़ें आ सकती हैं, जैसे पहले क्योंकि मैंने बताया था एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर यही था, तो जूट पता नहीं चलता किस में था ये, तो जूट को भी ऐड कर दिया, जूट का सीड को भी ऐड कर दिया एज पार्ट ऑफ इट। सो थिंग्स ऑफ दिस काइंड हैव बीन डन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द सेल पार्ट। देन ये जो सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड है ये इम्पॉर्टेंट है, जो जिसका बोर्ड का कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे IRA की बिग उसमें एज वन ऑफ द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, हेड ऑफ द सीड साइंस डिवीजन इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दैट कंपनी दैट कमिटी, जो सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड का, इसको बोर्ड ही बोलते हैं ऑन अ लार्ज एक्सटेंट, सीड वाले सारे बोर्ड बोलते हैं। तो दिस इज द एजेंसी विच डिसाइड्स to modify the act or amend the act or certify that this has to be changed or that has to be modified. Yeah, this act will have to make this change in the rule because this rule is not functional now, things have changed. तो वो सभी जो होगा enactment का या जो भी amendments आनी है तो ये बोर्ड ही पहले अप्रूव करती है। इसके अप्रूव करने के बाद वो अगर पार्लियामेंट में जाना पार्लियामेंट में जाएगी, या इट हैज़ टू बी डन विद इन द रूल सेक्टर, जो परमिशन है उसी के अंदर करना, जैसे भी होगा उसका, बट शुरुआत यहीं इसी बोर्ड से, बिकॉज दिस इज द एक्सपर्टीज बोर्ड। ये छोड़ देते हैं। आपको इम्पोर्टेंट है ये जो रिलीज वाली बोर्ड है उसके बारे में, लेट्स सी। दीज आर ऑल टू लीगल, इसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग कोई सीड की एक ही हैं, तो फ़ायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू।
बट इसको रख लीजिए आप लोग, कभी काम आएगा। ये जो बीच में एक और बात बता देता हूँ मैं बिफोर टू द लास्ट वन। जो भी सीड, जो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सीड एक्ट के अंदर मैंने बताया कि ऑल इंडिया ट्रायल के हिसाब से सिस्टम में किया है। तो आप कंपनी अगर कोई भी सीड सर्टिफाई करना चाहती है तो आपको भी वो ऑल इंडिया ट्रायल्स में भाग लेना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू ऑल्सो ज्वाइन विथ द सिस्टम, गिव योर एंट्री। उसके लिए एंट्री फ़ी होती है जो सेंट्रली डिसाइड होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो सेंट्रली डिसाइड होती है। वो हर क्रॉप का अलग अलग है, तो आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि उसमें मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे वीट में आपको करना चाहेंगे तो पहले एंट्री करने के पहले आपको मिनिमम स्टैंडर्ड्स का जो एक चेक लिस्ट है उसको टिक करना पड़ेगा। जैसे उसका डिसीज स्टेटस, वो डिसीज स्टेटस आप नहीं बताएंगे रेजिस्टेंट या ससेप्टेबल है, आपको जो सर्टिफाइड सिस्टम है जो हमें भी फॉलो करना पड़ता है आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। मतलब 1 साल पहले आपको नर्सरीज में उसको देना पड़ेगा, वहाँ से व्हाट इज़ नोन एज प्लांट प्रोटेक्शंस एंड स्क्रीनिंग नर्सरी, उसमें अलग अलग लोकेशन का डेटा आता है, वो कोड होके आता है, वो आपको दिया जाएगा और डेटा पॉइंट। तो दैट विल बी योर पास कि 10% से ज़्यादा नहीं है इन्फेक्शन, तो वो डेटा वहाँ से आएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको पहले, पासपोर्ट है, चेक लिस्ट है, उसको टिक करके फिर आप भी एंट्री कर सकते हैं, और हर एंट्री का फ़ी है एंट्री का। तो जो एंट्री में आप, जिस एंट्री का आपका उसी में सर्टिफाई हो जाएगा। लेकिन एक ही है कि आपका जो कंपटीशन है सिर्फ आपके अंदर है, इट विल नॉट बी विद द पब्लिक सेक्टर। वाइल द ट्रायल इज सेम, द परफॉर्मेंस विल बी गिवन टू यू, ठीक है ना। तो कोडेड होता है वो, तो इसीलिए किसका प्राइवेट का पब्लिक का वो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, चेक से ऊपर होना चाहिए, चेक से कम आना चाहिए, वो सब चीज़ें हैं, वो सब फॉलो होता है। वंस इट इज़ डन, दैट इज़ डिकोडेड एंड गिवन टू यू, then you can use that data to apply to the state agency or central agency. There are 2 levels of notification. Notification is one, there are 2 levels of release. One is state release committee, another is central release committee. दोनों सीड एक्ट के जो सेंट्रल सीड कमेटी है उसी के अंदर आती है, अप्रूव्ड बाय द सीड बोर्ड, सर्टिफिकेशन बोर्ड, जहाँ पे एक चेयरमैन होता है जो फिलहाल क्रॉप्स में डिप्टी डायरेक्टर जनरल ICR चेयरमैन है उसका, जो सब कमिटी ऑन द सीड स्टैंडर्ड्स and notification and release, subcommittee on seed standard certification release, वो है notification release. That committee will recommend release and notification. The Secretary of Department of Agriculture and Cooperation is the final authority because he is the chairman of this seed committee, central seed committee. So he will approve. Finally, notification happens after his approval in the gazette. ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरा, आप स्टेट के लिए, आप बंगाल के लिए आपने प्रोड्यूस कर लिया, बिहार के लिए कर लिया, तो बिहार में अलग आप रिलीज़ कराएंगे, वहाँ की स्टेट रिलीज़ कमेटी होगी, और बंगाल की अपनी स्टेट रिलीज़ कमेटी होगी। जब वो वहाँ पे रिलीज़ होती है, देन यू कैन गेट इट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल कमेटी। नोटिफिकेशन इज डन बाय द सेंट्रल कमेटी, रिलीज इज डन बाय आइदर स्टेट और सेंट्रल कमेटी, दोनों। सेंट्रल कमेटी में रिलीज़ आप तब करा सकते हैं जब आपका मोर देन 2 स्टेट्स हों, आपकी रिलीज वैरायटी की इज कवरिंग एन एरिया ऑफ मोर देन 2 स्टेट्स, देन यू डोंट हैव टू डू इट इन ईच स्टेट, यू कैन डू इट इन सेंट्रल कमेटी प्रोवाइडेड योर एरिया ऑफ कवरेज इज मोर देन 2 स्टेट्स, ठीक है। हाँ, वही ना, नहीं जोन में भी एक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि रिलीज शुड नेसेसरली बी इन एंटायर जोन। विद इन ए जोन द रिलीज कैन बी, नोटिफिकेशन कैन बी फॉर पंजाब एंड हरियाणा ओनली। Suppose Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu portion, then Rajasthan northern part, they are all part of northwestern zone, ठीक है। लेकिन the release can be only for Haryana and Punjab, release can be only for Punjab, release can only be for say Haryana, कुछ भी हो सकता है depending on the performance, ठीक है ना। रिलीज कर दिया तो CVRC notification is mandatory for No, release is mandatory for notification, and notification is mandatory for seed production chain, ठीक है। हाँ, आइडेंटिफिकेशन इज ओनली नोशनल आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पे जिसको CVRC बेस मानती है, ठीक है। एक सर्टिफाइड सिस्टम ने इसको नोटिफाई किया है, तो उनको मैंने बताया ना कि जो नोटिफिकेशन एजेंसी है सीड एक्ट के अंदर, कोई मजबूरी नहीं कि ICR का ट्रायल को यूज़ करना है, किसी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंडिया ने इसको अडॉप्ट कर लिया है
कि क्योंकि ICR है और ICR के नेशनल लेवल टेस्टिंग होता है, सबसे अच्छा सिस्टम है ये सच्चाई है। सही अगर करते हैं तो सबसे अच्छा सिस्टम है फॉर इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस इज़ ICR's ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड सिस्टम इंटरनेशनली। बिकॉज मैंने कनाडा में देखा है, US में देखा है, उनसे कई गुना अच्छा है हमारा, है ना। Once private company get entered into the ACRP program, हाँ, and they have handed over the checklist to say Hmm. that scheme. कोऑर्डिनेटर, हाँ। Then their person also get involved in the program. या आप अपने ऑफर भी कर सकते हैं कि मैं भी ट्रायल रख लूँगा मेरे साथ। जैसे आप मान लीजिए आप हरियाणा के एक लोकेशन आपका, उसके आसपास अगर कोई टेस्ट लोकेशन नहीं है तो यू कैन ऑफर, है ना, कि मैं भी टेस्ट कंडक्ट करूँगा। वॉलंटरी सेंटर। हाँ, वॉलंटरी सेंटर कर सकते हैं। तो जैसे सर एक कोई नया वैरायटी डेवलप हुआ, suppose लैब में हमें पता चला कि ये हमने नया वैरायटी डेवलप कर लिया, उसके बाद जैसे 1 साल का उसके ट्रायल के लिए तो 1 साल लगता है। 3 साल। 3 साल, कम से कम 3 साल चाहिए। उसके डाटा के बेस पे वो आगे बढ़ेगा, मतलब कोई नया वैरायटी डेवलप। नहीं, 3 साल का डेटा बेस नहीं होता है, हर चीज़ स्टेप वाइज है। फर्स्ट ईयर में जैसे ट्रायल नॉर्मली ऐसा होता है, मैं वीट का एग्जांपल लेता हूँ। नॉर्मली ट्रायल का जो एंट्रीज होती है ना, या तो 49 होती हैं, या 36 होती हैं, 25 होती हैं। क्योंकि अल्फ़ा लैटिस में करते हैं तो 5/5, 6/6, 7/7। तो मतलब जो एरर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए, या जो हेट्रोजिनिटी होती है लोकेशन में, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए इस तरह से प्लान करते हैं कि हर वेराइटी को 3 रेप्लिकेशंस में या 5 रेप्लिकेशंस में हर वेराइटी को स्कोप मिल जाता है कि जो भी उबड़ खाबड़ है, जो भी पानी की कमी है, एसिडिटी है, फर्टिलिटी डिफरेंस, ग्रेडियंस जो है वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो डेटा फाइनल निकलता है, वो सही निकलता है। तो 36, 25 और 49, नॉर्मली 49 से ऊपर नहीं जाते हैं, कोई ट्रायल नहीं हो सकता, मतलब दैट विल नॉट बी विल्डी ट्रायल। तो वो फर्स्ट ईयर में कर लिया। उस 49 में जो फर्स्ट ईयर में प्रमोट होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में एग्जाम्पल दे रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, इट विल बी 6 meters into 6 rows पर प्लॉट इंटू 4 प्लॉट्स, वो हो गया। तो सेकेंड ईयर में जो स्टैंडर्ड्स रखी हैं कि जो फर्स्ट परफॉर्मर्स है, फर्स्ट रैंक ऑफ परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिकली सिमिलर, नॉट बेस्ड ऑन द मीन ओनली, स्टैटिस्टिकली सिमिलर हो लेकिन फर्स्ट ग्रुप में हो, एक तो वो हो गया। सेकेंड, चेक जहाँ पे भी है एनालिसिस में, चेक अगर मान लीजिए थर्ड ग्रुप में है तो उसके ऊपर जितने भी हैं चेक के ऊपर स्टैटिस्टिकली उसी ग्रुप में हैं, उन सबको प्रमोट करते हैं। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग चेक, नॉट द नेशनल चेक। नेशनल चेक इज ओनली टू लुक एट द परफॉर्मेंस लेवल, नॉट फॉर डिसीजन मेकिंग। इट्स अ ट्रायल इवेल्युएटर, नॉट द वैरायटी इवेल्युएटर, जो लॉन्ग टर्म चेक है। वेयरएज द बेस्ट चेक इज द वैरायटी इवेल्युएटर। तो उस बेसिस पे आपने 49 से करीब 25 या 20 वो आगे फर्स्ट ईयर में पास हो गए, तो सेकेंड ईयर में सिर्फ 20 का ट्रायल बनेगा प्लस द 3 चेक्स, तब वो लैटिस वैटिस खत्म हो जाता है। देन विल बी ओनली रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन। ठीक है, क्योंकि अब तक बहुत कम हो गया। नॉर्मली इतना कम होता है कि हमें वैराइटीज ट्रायल कंपोज करने के लिए चेक्स ऐड करते हैं, जो मिनिमम एरर आने के लिए। मर्ज कर देते हैं दोनों। हाँ, या हाँ, दोनों मर्ज कर देते हैं। नहीं, AVT नहीं मर्ज करते हैं, AVT 1 AVT 2 दोनों मर्ज कर देते हैं। मर्ज कर देते हैं। थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर वाला मर्ज कर देते हैं। नहीं सर, पिछले साल हम लोग के यहाँ मर्ज कर दिया था दोनों वो। नहीं, IVT तो किस में? इतनी कम एंट्रियां थी। हाँ, अगर किसी ने नॉमिनेट नहीं किया एंट्रीज तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। हाँ ठीक है, जैसे 5 यूनिवर्सिटी नॉमिनेट करती हैं, किसी ने एक यूनिवर्सिटी ने कर दिया, 4 एंट्रीज उनकी है तो उसको उसमें करते हैं, सही है। तो दिस डिसीजन आर टेकन इन अ हाउस सो दैट देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन दैट। या सही बात है। बट एनीवे, जो 49 से 26 आ गए, तो 26 में से फिर वही स्टैंडर्ड्स हैं, इट हैज़ टू डू बेटर दैन द चेक। अब साइज़ बढ़ गया, वो 6 रोज थे, अब 12 रोज हो गया। ठीक है, पहले 6 रोज थे ना 6 मीटर, अब 6 मीटर्स 12 रोज हो गया। उस वक्त 4 रेप्लिकेशन, अब 6 रेप्लिकेशंस हो गए। सो दैट मीन्स यू हैव मोर स्टेबल डेटा कमिंग। उस वक्त सिर्फ 25 लोकेशन थे, अब 40 लोकेशंस हो गए। सो दैट यू गेट हायर एक्यूरेसी लेवल डेटा। तब उसमें से पास होना है ना, वो एसिड टेस्ट जैसा ही है। तो उस पर जो पास होता है वो 26 में से 10 भी नहीं रहता थर्ड ईयर के लिए। ये हमारे लिए अचीवमेंट वही है कि AVT फाइनल ईयर में कितना है, हम उसी को स्कोर करते हैं। परफॉर्मेंस अगर देखना ब्रीडर का ना, AVT फाइनल ईयर तक कितने लोगों का वैरायटी गई, उसके बाद तो वो हिट एंड मिस है। इट्स रियली डिसीजन बाय द कमिटी। साल आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाता है। हाँ, है ना। तो इसीलिए वो AVT 2 तक अगर जाता है तो उसमें दम है वैरायटी में। ये किस्मत की बात है वो सिलेक्ट ना हो पाए, लेकिन दम तो है उसमें, क्योंकि उसने स्ट्रिंजेंट लेवल
टेस्ट को पास कर ले 2 साल, ठीक है ना। सो देयरफॉर जो फाइनली आती है वैरायटी वो 1 या 2 सबसे अच्छी आती है, उसी को अप्रूव करते हैं। रेयरली 2 वैरायटीज़ पर ट्रायल, नॉर्मली 1 वैरायटी पर ट्रायल, उससे ज़्यादा जाता ही नहीं। तो इसीलिए प्राइवेट कंपनीज बहुत कम आती हैं, क्योंकि वो नोटिफिकेशन चक्कर में तो आ जाती हैं, लेकिन उसको कॉम्पीट करना उस लेवल पे इज़ नॉट दैट ईजी, है ना। इसलिए आज तक मैंने कोई वीट में या राइस हाइब्रिड में तो आई हैं, क्योंकि हाइब्रिड में पब्लिक सेक्टर से कम कंपटीशन है, लेकिन वैराइटीज़ में नहीं आई हैं। वीट में भी आज तक नहीं आई है प्राइवेट कंपनीज। वही आपको काफ़ी बाजरा में और मेज़ में उसमें से मिल जाती है। सर हाइब्रिड में क्या सिस्टम है सर टेस्टिंग का? वही सिस्टम है, ये सिस्टम उसमें सीड प्रोडक्शन इज़ नॉट अ इवैल्यूएशन, ओनली द हाइब्रिड परफॉर्मेंस। सर ये इंडिया में कोई अगर फॉरेन वैरायटी रिलीज या फॉरेन कंपनी कोई वैरायटी रिलीज कर रही है, तो यानी वो ऑलरेडी 3 ईयर वेस्ट करेगी इसमें ऑल इंडिया क्वालिटी वेस्ट क्यों करना है उसमें? तब तो आप रिलीज नहीं करने देंगे उसको। हाँ, वेस्ट कहाँ हो गया, वो तो परफॉर्मेंस है कि नहीं वो देखना ज़रूरी है। पहले मटेरियल आया उसके 3 साल बाद ही हाँ बिल्कुल, डिस्पैच होगा। हाँ ये तो मर्सिडीज बेंज भी तो ये लोकल ट्रायल करती है, टेरेन टेस्ट करती है, जबकि वो कितने सालों से वही गाड़ी है और नॉन लिविंग है। ये तो क्रॉप है, उसको तो इस सिस्टम में उसको ज़िंदा रहना है कि नहीं रहना। यहाँ जो टेम्परेचर रात के इतना टेम्परेचर है, जो वहाँ पर रिलीज हुआ वहाँ का रात का टेम्परेचर क्या होगा, दिन का टेम्परेचर कितने घंटे यहाँ पे 40 डिग्री होगा, वहाँ पे आधा घंटा हो सकता है, यहाँ पे 5 घंटा हो सकता है। तो वो तो टेस्ट करना ही है, इसमें क्या सोचना है। ये देखिए 2004 वाला बिल में जो दोबारा 2010 में पेश किया गया था, अब वो फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई है, अब 2014 में फिर अब 15 में 16 में शायद ये सरकार पेश करेगी, पता नहीं। ये है, हमारे पास आया था, इसके लिए इनपुट के लिए हमने दे तो दिया है, अब देखते हैं होता कि नहीं होता है। और वो तो मैडम जानती है कि सीड एक्ट में इस बार प्रपोजल जाएगा नहीं जाएगा। देखिए डेफिनेशन में पुराने इसमें सिर्फ हॉर्टिकल्चर इंक्लूडेड था, क्रॉप्स के साथ हॉर्टिकल्चरल एंटिटीज़। इसमें हॉर्टिकल्चर भी इंक्लूडेड है, फॉरेस्ट्री वाले भी इंक्लूडेड है, प्लांटेशन टाइप इंक्लूडेड है, मेडिसिनल एरोमेटिक सभी प्लांट्स इंक्लूडेड है। अब वाले में खैर ये तो सिंपल है, लेकिन ये वाला रजिस्ट्रेशन, अब जो इसमें सारे सीड को रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए सभी कंपनीज कतरा रहे हैं इस वक्त। एक तो वो है जो लिमिटिंग फैक्टर लोगों को लगता है, उनको रजिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रोसीजर जो इम्प्लीमेंटेशन वाली जो है वो सही करेंगे नहीं करेंगे, वो वाले कुछ उनको एम्बिग्यूटी है। लेकिन ये एश्योरेंस अगर उनको दिया जाए कि बिल्कुल सही होगा, इंडिपेंडेंटली होगा, नॉट बाय एनी अदर कॉम्पिटिंग एजेंसी, जैसे IRA हो या कोई और जो कॉम्पीट भी कर रही है, रजिस्टर भी कर रही है, रजिस्ट्रेशन भी करा रही है, वो नहीं। व्हेन इट इज़ डन इंडिपेंडेंटली देन दे विल कम फॉरवर्ड। जैसे PPFRA में इंडिपेंडेंटली होता है ना, इसीलिए बहुत से कंपनीज आगे आती हैं, तो हो भी रहा। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, वो अप्रेंशन है सिर्फ। लेकिन यही रिक्वायरमेंट है कि नो सीड कैन बी सोल्ड विदाउट रजिस्ट्रेशन इन द न्यू एक्ट। पहले में वो चक्कर ही नहीं था, यानी ओनली नोटिफाइड वैरायटी के बारे में बात है सीड एक्ट में, दूसरे एक्ट के बारे में कोई है ही नहीं, ठीक है। देन ये सीड कमेटी, इसमें करंट वाले में सेंट्रल सीड कमेटी है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उसके बाद ये स्टेट वाली बनाती है उसी बेसिस पे। इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल एंड स्टेट सीड कमिटीज एक ही साथ कॉन्स्टिट्यूट होगा इसमें, एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सब कमिटी वुड बी रजिस्टरिंग सीड फॉर ऑल वेराइटीज़। इसमें वो है ही नहीं, नोटिफिकेशन करना है तो एक ही सेंट्रल कमेटी करेगी, इसमें स्टेट वाली भी रजिस्टर करेगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, एंड लोकलाइजेशन भी है। देन ट्रांसजेनिक वैरायटी के बारे में, उसमें कोई ट्रांसजेनिक वैरायटी का प्रोविजन है ही नहीं एग्जिस्टिंग एक्ट में। ये एक मेजर प्रॉब्लम, मैंने इसको बहुत कोशिश किया कि GM को भी इसमें लाने के लिए बहुत कोशिश किया, ये बताते हुए कि जब 1966 में GM नाम का चीज़ ही नहीं था, उसका जिक्र होने का मतलब ही नहीं है। और जब GM डीरेगुलेट हो गया, इट इज़ लाइक एनी अदर वैरायटी। सो वेयर इज़ द प्रॉब्लम ऑफ GM वर्सेस नॉन GM। लेकिन मानने वाले बहुत मुश्किल से मानते हैं इस केस में, इसलिए वो अभी तक नहीं हो पा रहा, लेकिन इसमें तो उसको इंक्लूड कर दिया है, सो दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम अबाउट इट। देन कॉम्पनसेशन टू फार्मर्स, इसमें देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, कॉम्पनसेशन का कोई रूल एक्ट है ही नहीं कोई। बाकी कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू ही होगा, लेकिन सीड एक्ट के थ्रू नहीं होगा। इसमें वो है, ठीक है, डायरेक्टली कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ डायरेक्ट स्टिपुलेशन ही कर दिया है, एंड दैट इज विद इन द सीड एक्ट। प्रोवाइड्स कॉम्पनसेशन टू फार्मर्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन द इवेंट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस ऑफ सीड। जहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम है बता रहे हैं वो वहाँ पे आ जाएगा वो, इसी के लिए वो भी प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे प्रूव करें।
उसके लिए जो प्रोसीजर्स बनाएंगे उसमें वो सब चीज़ें आ जाएंगी, जिससे कि फार्मर को हर चीज़ को रखना, हर रेसिड को रखना पड़ेगा, हर चीज़ को टाइमिंग के बारे में कोई ना कोई उसके पास एविडेंस रखनी पड़ेगी। तो उसने जो स्प्रे किया उसी वक्त किया जिस वक्त चाहिए था, तभी इफेक्ट आएगा ना। अगर उसको स्प्रे करने का टाइम कुछ और था, उसने कुछ और टाइम पे कर दिया, परफॉर्मेंस नहीं आया, देन यू कैन नॉट से मैंने स्प्रे भी किया था जैसे बताया गया था। जैसे आयरन का प्रॉब्लम होता है राइस में, डायरेक्ट सीडी में बहुत ज़्यादा नज़र आता है, तो अगर नहीं किया उसने टाइम से, देन यू कैन नॉट से कि येलोनेस हो गया, ये टिलरिंग नहीं हो पाया इसलिए वैरायटी पुअर है, वो नहीं हो सकता। तो वो सब चीज़ें उसमें प्रोविज़न है कि किस तरह से वो चीज़ करनी। अगर आपको अपना क्लेम रखना है तो आपको ऐसे प्रोसीजर्स फॉलो करनी है, नहीं तो क्लेम का वैल्यू नहीं रहता है। देन सीड इंस्पेक्टर का भी वही रोल है। पहले काफ़ी चीज़ें कटे हुए थे कि डीएम चाहिए या स्टेट अथॉरिटी चाहिए, साथ में इन्फॉर्मेशन पहले देना चाहिए, उनसे परमिशन लेना चाहिए, साथ में 3 आदमी चाहिए, ये सब चीज़ें था। अब इसमें क्या है, ही हैज़ द पावर टू एंटर, सर्च एज वेल एज ब्रेक ओपन कंटेनर, ब्रेक ओपन डोर्स विदाउट एनी वारंट। तो बहुत पावरफुल आदमी हो जाएगा जो सीड इंस्पेक्टर, जो आप वो बोल रहे थे, तो और भी वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी। हाँ है ना, ओके। हाँ, जीएम का इसमें स्पेशल प्रोविज़न है, इसमें आ गया है। नहीं, पहले वाले माने का सवाल ही नहीं था ना, तब था ही नहीं। 66 में जीएम नाम की चीज़ था ही नहीं, तो कहाँ से आना था? तो उसको करने की ज़रूरत नहीं थी। वी कुड हैव टेकन इट, अदर कंट्रीज हैव डन इट, अदर कंट्रीज विद इंक्लूडिंग यूरोप, जो सच स्ट्रिंजेंट सिस्टम उनको उन्होंने भी कर दिया है अपने एक्ट में, उसको इंक्लूड कर दिया विदाउट एनी स्पेशल से अमेंडमेंट्स। ये हमारे इसमें ही सिस्टम में आ गया कि न होगा भी नहीं। आप बताओ, आप इसको मानने के लिए तैयार हो क्या कि किसी को भी छोड़ दोगे जो बिल्ला लेके आके मैं इंस्पेक्टर हूँ कि इसको तोड़ दो, इसको ओपन कर दो, इसको खोल दो, छोड़ दोगे आप? नहीं ना। तो ये मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से पास होगा। तो 2004 से नहीं हो रहा है, 2004 में हो गया, 10 में हो गया, नहीं हुआ, अब 15 में ऐसे कैसे हो जाएगा? चलिए, हो जाएगा जब कोई टोटल मेजॉरिटी वाली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हो जाए तो हो जाए। अदरवाइज़ जहाँ पे कंपनीज़ का और अप्रेंशंस हैं जो रेस कर रहे हैं, उसको देख अभी मैंने प्रेजेंट किया, अभी कब हुआ था ये मीटिंग, लास्ट मंथ ही हुआ था। शरद पवार जी को-चेयर हैं और चेयर कौन था? नहीं, शरद पवार जी चेयरमैन ही थे मेरे ख्याल में उस कमेटी का, जो सीड एक्ट इंट्रोड्यूस करने की जो वेरिफिकेशन कमेटी का, पार्लियामेंट में, लोकसभा में गया था मैं। तो काफ़ी इनके क्वेश्चन से हमने आंसर्स दिए कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसा हो जाएगा, सब चीज़ें बताए। लेकिन अब देखते हैं, अब वहाँ डिस्कशन बिल का होगा तो क्या होगा। अभी कोई रोक नहीं है, इस वक्त कोई रोक नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स की है जो परमिशन देती नहीं है, लेकिन उसका भी कोई रोक नहीं है, वो केस बाय केस है ना। तो अलग अलग है। जैसे अभी मेज़ के लिए पंजाब ने तो परमिशन दे दिया, कॉटन के लिए दे दिया, इसके लिए राइस के लिए दे दिया। तो अलग अलग, ये पंजाब ने नहीं दिया राइस के लिए, आंध्र प्रदेश ने दिया। पंजाब ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने बासमती की तरफ से उनको रोक रखी है कि क्योंकि बासमती ट्रेड में ये प्रॉब्लम होती है जीएम प्रूव करना, इसलिए जहाँ पे बासमती का जीए रीजन है वहाँ पे कोई जीएम ट्रायल नहीं होगा फॉर बासमती और नॉन बासमती, किसी के लिए भी। राइस मतलब जीएम होगा ही नहीं। वो हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको किया है। तो सीड एक्ट के अंदर नहीं है वो, लेकिन ये कमर्शियल रिक्वायरमेंट है, उसको सीड एक्ट ने मान लिया है कि नहीं करेंगे जीएम ट्रायल्स, कोऑर्डिनेटेड ट्रायल्स जीएम का नहीं करेंगे वहाँ पे। वेराज इसमें आंध्र प्रदेश ने राइस का भी दे दिया, महाराष्ट्र ने दिया। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हिसाब से है, तो अभी रोक नहीं है। लेकिन कोई जीएम का ट्रायल पूरा वही प्रोसीजर होगा, उसका कोई डिफरेंट प्रोसीजर है? नहीं, वो करना है, उस कमेटी का मेंबर हूँ मैं, वो करना है कि किस तरह से ये जीएम ट्रायल्स को किस तरह से ट्रायल करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हाँ, ये 2 साल में हो जाता है। हाँ, वो भी मुझे काफ़ी, वो भी मैं ही मेंबर सेक्रेटरी था उसके लिए भी, वो भी मुझे कम से कम 2 साल लगे थे उसको करने में, लेकिन हो गया। पहली बारी में हर चीज़ में दिक्कत होती है, तो हाँ उसमें ऐसे करते हैं जैसे, लेकिन उसमें कंडीशन वही है कि जो नोटिफाइड वैरायटी ऑलरेडी, उसी का आप ट्रायल कर सकते हैं।
ठीक है ना। और नोटिफाइड वैरायटी जैसे मैंने बताया, नोटिफाइड फॉर ए पर्टिकुलर यानी उसी रीजन। वेरिएंट के साथ उसको हाँ compare करेंगे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ मैं, जैसे आपकी वैरायटी नोटिफाई हुई है फॉर ईस्टर्न यूपी, ठीक है ना, 22 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ईस्टर्न यूपी, ठीक है। तो वहाँ जब वो हो जाएगा, ईस्टर्न यूपी के लिए हो जाएगा, तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं या 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उस 6 डिस्ट्रिक्ट्स के ही आपकी ट्रायल होगा। जो आपने नए MABB वाले जो वैरायटी बनाई है ना, उसी डिस्ट्रिक्ट में उसका ट्रायल होगा, उसी कंडीशन में जिसके लिए वो हुई है। अगर लेट सोन के लिए लेट सोन कंडीशन में होगा, और कंपैरिजन विल बी ओनली विद द पेरेंट, ठीक है ना। एंड बाकी हम चेक वैरायटीज़ उसमें इसलिए लगाएंगे टू गेट द एरर वेरिएंस वर्कड आउट। तो मिनिमम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम सर्टिफाई करने के लिए यू कैन ऐड चेक वैरायटीज़, ठीक है। बट डिसीजन बी टेकन ओनली बाय कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द MABB वैरायटी विद द पेरेंटल मटेरियल। यानी जिस जोन के लिए रिकमेंडेड है वहीं पे उसका हाँ, उसी जगह, हाँ, उसी कंडीशन। कितने साल तक होगी सर वो? यही 2 साल। 2 साल। मैंने अभी प्रपोज किया 1 साल के लिए, अभी रिसेंटली प्रपोज किया 1 साल में करते हैं, लेकिन लोकेशन बढ़ा देते हैं। 4-5 लोकेशन नहीं होगा, मिनिमम 10 लोकेशन होगा, है ना। तो क्या, क्योंकि ऑलरेडी फार्मर्स ने एक्सेप्ट किया हुआ उसको, तभी तो नोटिफाई हुई है, चल रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया उसमें, इसी को हम एलिमिनेट कर रहे हैं ना। तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि जब प्रूव हो जाता है कि 10 लोकेशन में उसका जो रिकरेंट वैरायटी उतना ही परफॉर्म कर रही है, तो आगे उसके करने की ज़रूरत है नहीं। तो वो है अभी हमारी एक वैरायटी वीट की भी पहली वैरायटी गई है, अभी प्रपोजल हमने दिया, अभी परसों है गुजरात में उसका वर्कशॉप, तो देखते हैं क्या होता है। वी आर डन इट। कई वैरायटी है राइस की जो 2-2 साल में उसको इम्प्रूव करके निकाला है। हाँ राइस हाँ, राइस में तो अच्छा, बहुत तकलीफ हुई है राइस में, लोग समझते थे इसलिए वी कुड डू इट। वीट में मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि कोई प्रॉब्लम क्या होती है सिस्टम में, जब सिर्फ IRA के पास ही प्रोडक्ट था, किसी के पास प्रोडक्ट था नहीं, तो जब तक पंतनगर में और PAU में और DWR में जब तक नहीं आया प्रोडक्ट, तब तक ट्रायल बनाने लायक मटेरियल नहीं आ रहा था, है ना। अब वो आ गया है, तो अब उसमें शुरू हो गया, मेज़ में शुरू हो गया, क्वालिटी प्रोटीन मेज़ में शुरू हो गया, तो इट विल बी हैपनिंग लाइक दैट। तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा फैसिलिटी है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो आप जिसमें आप कन्वर्ट करेंगे वो नोटिफाई होना चाहिए। अगर वो नॉन नोटिफाइड है फिर तो दिस इज नॉट इन द सर ये ऑर्गेनिक सीड जो प्रोड्यूस करते हैं उसका हैं? कुछ अलग गाइडलाइंस बनाया है सर्टिफिकेशन? कौन सी ऑर्गेनिक सीड? व्हाट इज इट? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नहीं, वो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। ये तो उसका कुछ सर्टिफिकेशन क्या है? हाँ, वो तो है ही, वो दैट इज ओनली फॉर द लेबलिंग ऑफ ऑर्गेनिक, इट इज नॉट अबाउट द जीनोटाइप, दैट इज लेबलिंग फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कंडीशन, not about the performance, not about the variety suitability, nothing about it. It is only that it is certified that it is produced under organic condition, that's all. It doesn't say anything about it. उसमें कोई evaluation नहीं है. It is only certification of the condition. This irrigated condition था, that's all, nothing more. फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। ऑल सीड इंपोर्ट्स आर रेगुलेटेड टू प्लांट क्वारंटाइन, वो तो इसमें भी है। और एनी करस्पॉन्डिंग ऑर्डर डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स, पेस्ट, पैथोजेंस वगैरह shall have conformed minimum limits of germination etc. Exports can be restricted if it is adversely affecting the food security of the country. उसमें सब कुछ जो इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें जो सीड पॉलिसी जिसके अंदर है ना, यही है, ए पर्सन रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग नोटिफाइड वैरायटी ऑफ सीड अनलेस इट कन्फर्म्स टू मिनिमम लिमिट्स, जो मैंने पहले बताया उसमें वही कंडीशन था। इसीलिए बहुत कंपनीज ने आसानी से इंपोर्ट कर लिया। और मेज़ में फॉर एग्जांपल यहाँ कोशिश किया, बट वो बात अलग थी कि उनके सारे सम टेम्परेट अडाप्टेशन, इसीलिए दे हैड टू कम बैक टू आवर ट्रॉपिकल सिस्टम। अदरवाइज काफ़ी कंपनीज ने कोशिश किया था। आपको पता होगा मोंसेंटो का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था बिहार में, किसी ने फॉलो किया तो पता होगा कि वो फ्लावरिंग ही नहीं हुआ। वो तो सर्टिफाई कर लिया, मिनिमम जर्मिनेशन है, वो तो सीड टेस्टिंग से हुआ गया, लेकिन जब उसका लगाया बिहार में, रिलीज़ कर लिया लार्ज क्वांटिटी में, फ्लावरिंग पे ही नहीं आया, बिकॉज कंडीशन वाज नॉट टेस्टेड। तो अब इसमें वो नहीं होगा, है ना, इसमें तो टेस्ट करके ही करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए वो टेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना। मतलब वैसे इंपोर्ट करने की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्सपोर्ट करने की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उसको कल्टीवेट करने के लिए, सेल करने के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए। रजिस्ट्रेशन में आपको ये रिक्वायरमेंट है कि आपको 2 साल का डेटा चाहिए, तो वही है। सो देयरफॉर वो प्रॉब्लम नहीं होती, है ना।
बाकी रजिस्ट्रेशन में जैसे देखिए इसमें सीड एक्ट में अभी के नोटिफिकेशन में कोई नंबर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने साल तक आपको ये रजिस्ट्रेशन हो गया। PPFR में 15 साल है, नोटिफिकेशन सीड एक्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक बार रिलीज़ हो गया हमारी वैरायटी, हमारे मरने के बाद भी चलती रहेगी 25 सालों 30 सालों 40 सालों। अगर वो इंडेंट मिलता सीड इंडेंट उसका मिल रहा तो अभी भी उसकी सीड प्रोडक्शन हो ही रहा है ना। लेकिन इसमें इसको एक लिमिट लाने की बात हो रही है, लेकिन अभी कंसेंसस नहीं आ रहा है। लेकिन PPFR में 15 साल रखा, हमने प्रपोज यही किया इसको भी 15 साल ही रखो, सो दैट प्रोटेक्शन भी साथ चलेगा, ये भी साथ चलेगा, तब डील करने में आसान होगा ना।